Good morning, dear students. Chapter number 6, Standard 11 Science, Work Energy Power. Work Energy Power के अंदर in last lecture we can discuss work and the special cases of work. Now today we have discussed a kinetic energy. What is energy? First of all, what is energy? Object, any object work, the kinetic energy of an object is a measure of the work an object can do by the virtue of its motion. The kinetic energy of an object is a measure of work an object can do by the virtue of its motion. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर. उसका सेकेंड फॉर्मूला है m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो तो ऊपर हो जाएगा m² v²/2m. बट वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे हो जाएगा p². तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है p²/2m. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन k proportionality p², k proportional to p², remember it. If linear momentum becomes 3 times, then kinetic energy becomes 9 times. Linear momentum becomes 2 times, then kinetic energy becomes 4 times. Once again, what is energy? The work can be done by any object is called energy. कोई भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वर्क ज्यादा हो रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो भी ऑब्जेक्ट वर्क कम कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम है. और वर्क कैन बी डन बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. यानी जो मोशन के अंदर है और उसके अंदर जो वर्क करने की जो एबिलिटी है इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. कोई भी पर्सन एकदम से दौड़ के आपके साथ कोलाइड्स हो रहा है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी. इट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. वर्क कैन बी डन बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन is called kinetic energy. Kinetic energy के दो फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर एंड p²/2m. Kinetic energy is a scalar quantity and the unit is Newton into meter and joule. Dimensional formula m1 L2 T-2. Next, most important theory, work energy theorem. ये चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी वर्क एनर्जी थियरम. If force F vector acting on body of mass m and gets velocity of an object is v. If force F vector acting on body of mass m and gets velocity of an object is v, so work done is W is equal to force into displacement F vector dot d vector. But we know that according to Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. So work done W is equal to m a vector into d vector. Work done W is equals to m a vector dot d vector. Equation number 1. According to kinematic equations, chapter number 3 और 4 के अंदर हमने kinematic equations देखे 3. First is V equals to V naught plus AT. Okay. Second is D equals to V naught T plus half AD square. And third is V square minus V naught square is equals to 2AD. A vector dot D vector को सब्जेक्ट बनाओ तो 2 नीचे V square minus V naught square by 2. V square minus V naught square by 2. Equation number 2. और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें. So W is equal to m a vector dot d vector. But a vector dot d vector की जगह हम क्या लिखे v square minus v naught square by 2. ब्रैकेट ओपन करो तो W is equals to half m v square minus half m v naught square. Half m v square minus half m v naught square. What is v naught? Initial velocity. So half mv square is equals to k naught. K naught is the initial kinetic energy. V for final velocity,
तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू डेल्टा के. तो फॉर्मूला, तो सेंटेंस क्या होगा? स्टेटमेंट, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स. Again, work energy theorem. If force acting on body of mass m and gets velocity of an object is v, so work done का फॉर्मूला हमने आगे पढ़ा, F vector dot d vector. According to Newton's second law of motion, F equals to ma, तो mad. थर्ड नंबर का हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad. तो a वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2. ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो एंड ब्रैकेट ओपन करो तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. सो W इज इक्वल्स टू के माइनस के नॉट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड इज इक्वल्स टू डेल्टा के. सो W इक्वल्स टू डेल्टा के इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड के नॉट इज अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स. नाउ वी go to the example 6.2. It is a well known that the raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and opposite a resistive force. ये सब इंट्रोडक्शन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है. सी, कोई भी अगर बारिश के अंदर जो रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ ये रेन ड्रॉप्स है. रेन ड्रॉप्स के ऊपर डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट. फॉर वन इज वेट फोर्स mg या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो एयर मीडियम है, एयर की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन. रेन ड्रॉप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो उसके अंदर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है. वन इज वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड इज रेजिस्टिव फोर्स produced by air. Consider a drop of mass is 1 gram falling from a height 1 kilometer. If it hits the ground with the speed of 50 meter per second, so what is the work done by the gravitational force? See, यहां पर फ्री फॉल हो रहा है और चैप्टर नंबर 3 और 4 याद करो तो फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0 एट मैक्सिमम हाइट, और जब नीचे ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी है 50, तो इज अ फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो d इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. But initial velocity becomes 0, so initial kinetic energy becomes 0. So 1 by 2, m is equal to 1 gram, convert into kilogram, so 10 raised to minus 3. V for velocity is a 50 whole square. So change in kinetic energy is a 1.25 joule. 1.25 joule. 1.25 joule. A work done by the gravitational force. Work done by the gravitational force Wg is equals to mgh. Mass 1 into 10 raised to minus 3. G is equals to 10 and height h is equal to 10 raised to 3. So Wg is equals to 10 joule. Wg is equals to 10 joule. According to work energy theorem, delta k is equals to W. Delta k is equals to W. And total work done is equals to Wg plus Wr. So Wr is equals to delta k minus Wr is equals to
डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी, तो 1.25 माइनस 10, तो आंसर इज माइनस 8.75 जूल. WR means work done by resistive force and WG means work done by the gravitational force. और रेजिस्टिव फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वो नेगेटिव होगा, तो पूरा नेगेटिव. एग्जाम्पल 6.3. A cyclist comes to a skiding stop in 10 meter. During this process, the force on cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposite to the motion. तो how much work does the road on the cycle? सी यहाँ पे हम क्वेश्चन समझे तो कोई एक साइकिलिस्ट जा रहा है साइकिल लेके, वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो ब्रेकिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. ब्रेकिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ब्रेकिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई. तो वर्क डन आपको नेगेटिव मिलेगा. एफ डी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू 200, डिस्टेंस 10 मीटर, कॉस पाई -1. सो वर्क डन बाय द रोड इज इक्वल टू माइनस 2000 जूल. वर्क डन बाय द रोड ऑन बाइसिकल माइनस 2000 जूल. अब सेकंड क्या है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द वर्क ऑन द रोड. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स third law of motion, according to Newton's third law of motion, an equal and opposite force act on the road due to the cycle magnitude is 200 Newton, but however the road undergoes no displacement, means work done becomes 0. See, आप वॉल के ऊपर ऐसे बॉल थ्रो कर रहे हो, तो जब भी वॉल और बॉल का कांटेक्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल बाय बॉल, सेम फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल बाय वॉल. बट अगर वॉल के ऊपर बॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है बट वॉल थोड़ी डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0, देन वर्क डन बिकम 0. जैसे आप ग्राउंड लेवल है और उसके ऊपर ऐसे बॉल थ्रो कर रहे हो तो उसमें भी ऐसे ही होगा. सेम यहां पे है कि जब रोड साइकिल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, सेम फोर्स अप्लाइड ऑन रोड बाइसिकल, बट साइकिल रोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा बट रोड थोड़ी मोशन करेगा. रोड अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क डन बिकम्स 0. तो ये था एग्जाम्पल 6.3.